बताइए शिवेंद्र जी कि आपने अभी आपने बीटेक कंप्लीट किया, कब कंप्लीट किया आपने? 2018 में सर। 2018 में। कब से आप वर्किंग है? हाँ। कहाँ पर? टीसीएस में? TCS। तो फिर आप इतने अच्छे जॉब में हैं, बीटेक किया आपने, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। तो जब आप वहाँ सीनियर हो गए हैं तो आप यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं बिहार में? Sir, the kind of opportunity that this post will provide me, that I cannot expect in Tata Consultancy Service. Means What type I of am opportunities are you expecting? like working with different stakeholder in the government, different industry, different department. Here I work for a specific client which is located in abroad like US or Europe. That Then that you, would you not. can change your job profile. Then you can change your job profile in the private sector also, and you can get a very good exposure in the different sectors. But why do you, and you are working in which city now? New Delhi. New Delhi. So no one wants to come back to a state like Bihar when your lifestyle must be changed. You have a good reputation, good earning. So why do you want to come Sir, to Bihar? I have been in Bihar for like since my childhood to 10th. So and I have much attachment with Bihar. So I want to work in Bihar only. Okay. What is the role of project manager in Bihar? Project manager handle different type of role. First to grant loan to different like different different industries like MSMEs, all these things. Second thing is implementation of government policy such as industrial promotion policy and all these things like third thing is they do kind of land acquisition for industries, providing power and plug and play type of facility for the different kind of industry. This type of role project manager do for district industry center. District Industry Sector Center. When was it formed? DIC. Uh, that I And am why not was sure. it formed? Sorry. Uh, I am not sure about when it is. Okay. Why there is lack of industrialization in a state like Bihar? And how do you Uh, compare your state, Bihar, with the companion state of where you are presently working in New Delhi? There are several reasons like lack of industry growth in Bihar. First is that there was some industry in means in Bihar in large scale industry in Jharkhand after segregation of Bihar in 2000. After segregation of Jharkhand from Bihar in 2000, uh, these are shifted in Jharkhand. Second thing is law and order situation, which were not good in Bihar before 2004 or 5. The problem of Naxalite was there in southern Bihar. Third thing is that the issue of flood and that thing where means economic prosperity is means not there. Fourth thing is that economic political instability in Bihar during initial phase that also impacted. And Okay, okay. You told that before 2004 there was a lack of law and order problem. So you meant that after 2004 the law and problem has been removed. So then why and not industrialization has increased? yeah, problem means problem has been not removed completely, but situation has improved in Bihar. But still there are means several competitor state like any industry which want to invest, they look for track record and history. So means situation and improving, but still we are in growing phase. Currently, like in recent 4 to 5 years, some industries are investing in Bihar in different areas. What are some of the steps taken by Bihar government
to flourish industrialization? There are several, like in primary sector, we have recently launched ethanol promotion policy for ethanol based industry. For food processing industry, we have policy. For leather industries, we have policy. Recently, a startup policy was launched in 2022. And also for individual, also we have, like in the Mukhyamantri SC/ST Protsahan Yojana, Mahila Protsahan Yojana, Yuva Protsahan Yojana. This type of scheme government is implementing so that industrialization can be grow. And secondly, through Sat Nishay scheme also, government is trying to build capacity building of individual in different sectors. Okay. Okay. Just tell me, what is the if you have to suggest your company where you are working now, there's a TCS. If you have to convince it to come to the Bihar and open a branch, what are the things which you will mention, or how will you convince? TCS is currently operating in Patna, but there are some cities like currently after work, means after COVID, work from home situation, means employees are preferring home work from home post COVID, and they are looking for means organization in tier 2 or tier 3 cities, and the company also means expanding their businesses in tier 2 and tier 3 city. So city like Patna, Bhagalpur, Darbhanga, Muzaffarpur, that have great potential, so there means different employee can work. Okay. Now, just tell me, if there are major issues of skill-related problems which the companies don't find here, the skilled labors. So, what are some of the steps which are taken presently by the government and which can be taken? Yeah, some of the means steps taken, like Kaushal Vikas Yojana, PMG Disha, for digital literacy. I'm talking about specifically IT sector. And some of the schemes, like opening engineering college in each and every district of Bihar, and branch like computers and electronics, where and company if company and industry and academia relation will be good, then there is chance of and means opportunity that employability of means a student can be means increased. हाँ sir. बोल लेते हैं. हाँ सर. चलिए बताइए, डिपेंडेंसी रेट के बारे में आपने सुना है? नहीं सर. जनसंख्या से संबंधित है. जब वर्किंग पॉपुलेशन मीन्स वर्किंग पॉपुलेशन कम हो और उस पर डिपेंडेंसी पॉपुलेशन की ज्यादा, शायद उसे डिपेंडेंसी रेट करते हैं, लाइक 15 टू एज ऑफ 16 to 59, ऐसा कुछ है. अगर डिपेंडेंसी रेट बहुत अधिक है तो इससे आप उस जनसंख्या समूह के बारे में क्या एक डिसीजन निकालते, क्या एक निर्णय या निष्कर्ष निकालते हैं? अगर डिपेंडेंसी रेट ज्यादा है तो मीन्स वेलफेयर स्कीम ज्यादा चलानी पड़ेगी गवर्नमेंट को. जैसे डेमोग्राफी डिविडेंड कम है. किस प्रकार के वेलफेयर स्कीम? वेलफेयर स्कीम की क्या खासियत होनी चाहिए जो ऐसे समूह के लिए चलाई जाए? जैसे एडल्ट के लिए, जैसे सीनियर सिटीजन के लिए वेलफेयर स्कीम होगा, और चाइल्ड. एडल्ट तो डिपेंडेंसी रेट में आएगा नहीं ना? अच्छा चलिए ठीक है. तो मतलब उनके लिए जैसे वेलफेयर स्कीम, जैसे कि वृद्धा पेंशन योजना और मेडिकल फैसिलिटी, इन्वायरमेंट सिक्योर करना सो दैट दे कैन लिव, मतलब अकेले रह पाए, और चाइल्ड के लिए एजुकेशन वगैरह, ये सब के लिए. डिपेंडेंसी रेट का अधिक होना किसी स्थिति में लाभदायक हो सकता है. आप उस स्थिति का लाभ, आप उस स्थिति के बारे में बता सकते हैं? कौन सी वो स्थिति हो सकती है? चलिए ठीक है. डिपेंडेंसी रेट, अगर प्राश्रिता अनुपात अधिक है, मान लीजिए कि उसमें वृद्धों की संख्या अधिक है,
तो वृद्ध को अर्थव्यवस्था में समायोजित करने के लिए, उसको एकोमोडेट करने के लिए उनको क्या स्टेप लिए जाने चाहिए? जैसे पोस्ट रिटायरमेंट जॉब, बैंक वगैरह में हम लोग जॉब देते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब। ठीक है। रिटायरमेंट एज बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मतलब करेंटली जुडिशरी में 62 है, तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। और सर यही जो वर्तमान में चुनाव सुधार है वो एक आम बहस का मुद्दा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय को क्या आप याद कर पा रहे हैं जो इस चुनाव सुधार की दिशा को आगे बढ़ाते हैं? जैसे अभी रिसेंट में जो जजमेंट आया है चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर, कि जैसे पहले मतलब आर्टिकल 324 क्लोज 2 के अनुसार, जैसे जो मतलब निर्देशित किया गया कि एक लॉ के मतलब संसद के द्वारा बनाया जाएगा, बट वो लॉ अभी तक बना नहीं है। तो उसके दिशा में अभी रिसेंट का जजमेंट है, जिसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तीन मेंबर का एक कमेटी बनाया है चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट करने के लिए। और दूसरा एक लिली थॉमस केस है, जो उसके लिए मतलब क्रिमिनल, अगर पॉलिटिशियन अगर सिटिंग एमपी पे क्रिमिनल चार्ज होता है उसके लिए। तो क्रिमिनल चार्ज क्या, उसका प्रावधान क्या है? क्रिमिनल चार्ज कितना होता है? 6 साल है, मतलब 6 साल, 2 साल से अधिक 6 साल हो तो नहीं, 2 साल से अधिक का अगर क्रिमिनल केस है तो 6 साल तक बैन रहेगा सजा के। 6 साल तक कब से बैन रहेगा? जब से सजा हुआ है, जब सजा पूरा हो गया है तब? सजा पूरा होने के बाद। ठीक है। वर्तमान समय में जो अपना निर्वाचन आयोग है भारत का, उसमें निर्णय कैसे होते हैं? बहुमत के आधार पर होते हैं या चीफ इलेक्शन कमीशन को? नहीं, कंसेंसस के आधार पर, मतलब आम सहमति बनाते हैं। अगर जो ठीक है, जो 3 व्यक्ति हैं उसमें, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त, क्या उन दोनों का रैंक और स्टेटस समान है या अलग है? अगर डिसीजन लेने के मामले में समान है, बट अगर सैलरी वगैरह। रैंक और स्टेटस मुझे बताइए। रैंक और स्टेटस 2 स्पेसिफिक शब्द हैं। रैंक जैसे अगर अपॉइंटमेंट के मामले में देखें तो रैंक और स्टेटस अलग अलग है। चलिए ठीक है। मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूं कि वर्तमान समय में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उस पर काफी जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? सर संविधान निर्माताओं का ऐसा मत था कि मतलब अगर लागू किया जाए तो मीन्स ट्रस्ट बिल्डिंग हो हमारे समाज में। तो सर ऐसा मत कहाँ है संविधान निर्माताओं का? कहीं तो लिखा नहीं है ऐसा मत। मतलब ऐसा मतलब ऐसा प्रतीत होता है, जैसे आर्टिकल 44 में है कि स्टेट सेल इनफेवर। तो मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि स्टेट को चाहिए जब तक ट्रस्ट बिल्ड ना हो तब तक इसको देखा जा सकता। तो आप बताइए, आपके अनुसार लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर सारे स्टेक होल्डर के कंसीडरेशन के बाद ही मतलब इस स्टेप पे आगे बढ़ना चाहिए, जैसा हमें लगता है। स्टेक होल्डर में सारे रिलीजियस कम्युनिटी और एससी एसटी कम्युनिटी। ठीक है। कम आ रही है। एक रही है कि बिहार को कहा गया कि देश में सबसे तेजी से इसकी आर्थिक समृद्धि दर बढ़ी, सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो किया बिहार ने। तो उसको आप कैसे समझ लेते हैं? पिछले 10 सालों में देश के ग्रोथ रेट काफी अच्छा है, तो मतलब ये अच्छी बात है। नहीं, मतलब इसके पक्ष और विपक्ष में जैसे इसकी आलोचना भी की गई कि जो डाटा है इसका आलोचना की गई कि ये सही डाटा नहीं है। जो आर्थिक समृद्धि है, जैसे किसी भी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि समृद्धि निकाली जाएगी तो उसका एक बेस होगा ना, आधार होगा। तो किसी चीज का अगर आधार कम है और उसका मान लो 100 पॉइंट है किसी चीज का आधार, और वो 10 बढ़ता है तो 10% ग्रोथ दिखेगी। और किसी उसका 1000 है तो आप, और 10 बढ़ेगा तो ग्रोथ तो कम दिखेगी, या 100 भी बढ़ा तो ग्रोथ तो एक्चुअल में उसकी ज्यादा हुई, लेकिन परसेंटेज वाइज ग्रोथ तो दिखेगी बिहार की। तो हुआ भी यही कि बिहार की जो ग्रोथ है वो इस मायने में दिखी कि उसका बेस कम है। तो इसलिए तो
इस चीज को मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसको आप कैसे लेते हैं कि आर्थिक समृद्धि तो बढ़ रही है, लेकिन ग्रोथ में दिखाया गया कि लास्ट 10 साल में सबसे तेजी से बढ़ा सबसे, लेकिन क्या एक्चुअल में इससे समस्या का हल होगा, या जो दिल्ली मुंबई के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, जो आम आदमी है, जो सरकारी नौकरी में नहीं है, कहीं कोई रोजगार नहीं है, तो उनको क्या वहां पे रोजगार देने में सक्षम है कुछ लोगों को कम से कम? हाँ सर, ये बात तो सही है कि मतलब जब हमारा बेस छोटा हो तो उसके बाद ग्रोथ भी मतलब उस हिसाब से ही बढ़ेगा। जैसे इंडिया का ही और यूएस का ही ग्रोथ हम अगर कंपेयर करें तो इंडिया 6-7% से ग्रो करता है, और जबकि यूएस 1-2% से। तो उस हिसाब से ये संदर्भ बिहार के लिए भी मतलब सही है। बट अगर ग्रोथ हो रहा है तो ये मतलब अच्छा ही साइन है कि मतलब ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी आएगी। जैसे हम इंडिया में मतलब 90s के बाद ग्रोथ अच्छा हुआ तो मतलब प्रोस्पेरिटी कुछ बढ़ी है, उस हिसाब से हम बिहार के संदर्भ में भी देख सकते हैं ये चीज़। अच्छा, एक सवाल और है मेरा कि अभी इससे हटके, इकोनॉमी से हटके, कि अभी तक जो हम देख रहे थे कि समाज के बीच में जो कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो तनाव उत्पन्न करती हैं, दो विभिन्न धर्मों के बीच में हो चाहे विभिन्न जातियों के बीच में हो, तो जो संविधान की चीजें हैं, जो अवधारणाएं हैं, तो आपको पता है, हमें पता है, सबको पता है, लेकिन समाज में जो जातिगत आधार पे अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और विशेष करके जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पर पहले से ही जाति आधार पर जो दीवारें खिंची हुई हैं, और वो फिर और प्रबल हो जा रही हैं। इसके लिए सोशल मीडिया से लेके बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसका सोल्यूशन आपके हिसाब से क्या हो सकता है? क्या आप इसको गंभीरता से मतलब आपको लग रहा है कि एक गंभीर समस्या है, या फिर ऐसा लग रहा है कि ये बस केवल सोशल मीडिया की देन है, ऐसे आ जा रहा है? कैसे लेते हैं इसको? सर, अगर किसी भी समाज में अगर हिंसा होती है, मतलब आपसी मतभेद होता है, ये तो मतलब एक गंभीर समस्या है। और इसका मतलब दिन सोशल मीडिया भी है, और कुछ कुछ मतलब पॉलिटिकल मोटिव भी होती है। कभी चुनाव के समय हम अक्सर देखते हैं कि ये बढ़ जाता है, ये घटता है। तो मतलब तो आपका मतलब है कि चुनाव तो अभी काफी लंबा समय है, अभी कौन सा आगामी चुनाव इतनी जल्दी? मतलब लोकसभा तो 2024 में है, उत्तर प्रदेश में तो अभी कोई चुनाव है नहीं, उत्तर प्रदेश का छोड़िए, मतलब बिहार में भी, या मतलब पूरे उसमें देश में जहां जहां पर हो रहा है, ऐसी चीजें सुनने को मिल रही हैं जो जातिगत आधार पे चीजें हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, इस पे देखिएगा कि क्या चीजें हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, बस। नहीं, ठीक है। श्रीकु साहब, ये आपका आंसर सब ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप आ करके बहुत ज़्यादा अटक रहे हैं, ठीक है ना? तो बीइंग ए मतलब प्रोफेशनल कोर्स आपने किया है सब कुछ, तो बात जो है उसको अच्छे से कीजिए, बहुत ज़्यादा अटकिए मत, थोड़ा सा माइंड में रुकिए, सोचिए, समझिए और फिर जवाब दीजिए, लेकिन फ्लुएंट होकर के बोलिए, ठीक है? और एक चीज़ है, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इसको और आप यहाँ आ रहे हैं, इस आंसर को आपने ठीक दिया है, लेकिन थोड़ा सा और सही ढंग से इसको प्रिपेयर कीजिए कि हम क्यों यहाँ आना चाह रहे हैं, वहाँ का जॉब छोड़ कर करके, क्योंकि इसमें आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत किया जाएगा, ठीक है? सर, तो एक तो इस यहाँ पे क्या मतलब क्या मतलब जैसे अगर कि आपको बता रहे हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट अभी आपका देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ इतना ज़्यादा है, आपको ऑलरेडी जॉब मिला हुआ है वहाँ पर, दिल्ली जैसे आपका लिविंग स्टाइल अलग हो गया होगा, आप यहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे? आपको एक गांव में, एक डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, कई जगह जाकर के आपको रहना पड़ेगा वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को आपको हैंडल करना होगा, मतलब आपको बोलना होगा, दिखाना होगा कि नहीं, मेरा लगाव है, जुड़ाव है, कि मैं बिहार के डेवलपमेंट में योगदान देना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को। उसके बाद आपको बहुत सारा सवाल अभी नहीं किया गया, लैक ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम से आप क्या योगदान कीजिएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ठीक है ना? तो उसका क्या रोल, ये सब प्रिपेयर कीजिएगा। और ओवरऑल मुझे आपका आंसर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने पूछा था सारा, उसमें ये था, करंट से भी आपका ठीक है, लेदर पॉलिसीज वगैरह ये सब चीज़ें, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड अदर सेक्टर जो है जीएसडीपी में, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा कितना है, क्या है, ठीक ठीक है है?
और स्कीम्स वगैरह तो आपने ठीक ठाक बोला ही सारा कुछ, ठीक है। और प्रोजेक्ट मैनेजर का डीआईसी का पार्ट थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्या हायरार्की है, क्या रोल है, कब बना था, ठीक है। वो देख लेंगे बॉस। ठीक है, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। देखिए, आपने मेरा जो प्रश्न था जो मेरे द्वारा पूछा गया था उसका उत्तर लगभग आपका सही है और आप काफी अच्छा से उत्तर देते हैं और बात का जो मैनर करने का है वो भी ठीक रखते हैं। थोड़ा सा अपने एनर्जी लेवल को आप हाई रखिए, ऐसा लगता है कि आप मतलब खोए खोए से रहते हैं, है ना। इस तरह से जवाब नहीं देना, आप जवाब सही दे रहे हैं तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल को हाई करके देना है और जहाँ पे गैस करना है वहां पे परमिशन ले लेना है कि सर ये मुझे पूरा एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं सही नहीं जान रहा हूँ, मैं गैस करना चाहता हूँ, तो वहाँ परमिशन लेके गैस करना है और टू द पॉइंट पे एक ही बार में आ जाना है। जैसे कि आपने विधि की उचित प्रक्रिया जो है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो उसमें एक ही बार में आप पॉइंट पर नहीं आए। और दूसरी क्या बात है कि आपने बोला कि उसको बाद में अधिकार को विस्तारित किया जा सकता है, उसके पीछे देखिए एक रीजन ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिखने का कि ये चूंकि आपराधिक मामलों को डील करता है और इसमें अलग अलग न्यायालय अपना रीजन इस्तेमाल करे, एक ही व्यक्ति अलग अलग न्यायालय में अलग अलग रूप से दोषी होगा और अगर दोष के लिए एक ही कानून नहीं है, एक ही सजा नहीं है, तो ये क्रिमिनल लॉ में बहुत बड़ा अनिश्चितता को वहां पे पैदा करे। ये उसका रीजन था, अगर आप नहीं जान देते तो वहीं पे स्टॉप ले लेना चाहिए, है ना। तो हो सकता है कोई उसमें गहरा कारण है, बाकी चीज मेरे तरफ से ठीक है, आपका सब चीज बात करने का, उत्तर देने का, आप सही अप्रोच भी लेते हैं, मेरे तरफ से ठीक है, ऑल द बेस्ट। और सर यूसीसी वाले में मतलब अगर कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जैसे यूसीसी हुआ और मतलब और भी सारी चीजें, यूसीसी वाले तो में देखिए, यूसीसी वाले में आप अपने सर पे तोहमत लेने से बचिए और उसका सबसे बढ़िया जवाब है कि आप किसी समिति का सहारा लीजिए। आप कहिए कि सर 2018 में लॉ कमीशन बना था, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया कि नॉट नेसेसरी नॉट डिजायरेबल, लेकिन फिर से सरकार एक कमीशन बना रही है, तो हमें यह देखना होगा कि कमीशन क्या रिकमेंडेशन देती है। कमीशन, हाँ, आपको पूछे कि नहीं आपको कहना हो तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहिएगा कि सर मुझे कहना हो तो मैं कमिटी के रिकमेंडेशन पर ही कहूंगा, लेकिन हाँ, कमिटी को कुछ निश्चित मुद्दों पर विचार करना चाहिए, जैसे कि सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो किस लेवल का है, सामाजिक शांति किस लेवल का है, और इसमें सुधार की जो डिमांड है उसमें कौन कौन से ग्रुप, कौन कौन से समूह, कौन कौन से स्थानीय जो वो ब्लॉक है वो सब सहमत है। और सर अगर इसको लागू करना हो तो इसे टुकड़ों में लागू किया जाना चाहिए, पहले जैसे विवाह पर लाए, है ना, फिर तलाक पे लाए, फिर उत्तराधिकार पे लाए, फिर उसके हाँ, बाद प्रॉपर्टी वाले पे लाए। और इसमें सर टॉप डाउन अप्रोच की बजाय अगर बॉटम अप अप्रोच हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सुधार की मांग खुद समुदाय में से उठनी चाहिए और इसके लिए समाज में अशांति ना हो, कोई विद्रोह ना हो, इसके लिए हमें सुधार और जागरूकता दोनों को समांतर रूप से चलाना होगा, ताकि सुधार हमारा डिजास्टर ना बन जाए, हम जिसके लिए सुधार कर रहे हैं वही विद्रोह के लिए सड़कों पर ना जाए। तो उसको समझाना होगा कि ये तुम्हारे हित में है, तो सुधार और जागरूकता ये दोनों एक साथ चलने चाहिए, हैंड इन हैंड, यही जवाब है। हाँ, ओवरऑल मैं ये यूसीसी वाला जो इन्होंने इसका क्या बोलते हैं सवाल पूछा था, इसका कॉमन वाला, तो इसका जवाब तो इन्होंने बड़ा अच्छा बता दिया नवीन जी ने। इसको रेडी कर लीजिएगा, इंटरव्यू आपका ठीक है, ओवरऑल सही हो जाएगा, थोड़ा सा फॉर्मल आपको रहना है जो उन्होंने अतुल जी ने बता ही दिया है, बाकी ठीक है। ठीक है, सवाल तो मेरे थोड़ा सा वो थे, समझ वाले थे, इसलिए आप थोड़ा सा उसमें वो हुए, उससे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बाकी लेकिन दोनों आपको लोगों के रवि जो सर के सवाल का जवाब देना चाहिए, वो एनालिटिकल सवाल था, तो हाँ फैक्चुअल सवाल नहीं था, ठीक है। हाँ, तो हाँ, ठीक वहाँ रिस्क लेना चाहिए आपको। तो ठीक है, बाकी छोटे ओवरऑल सही है कुछ थोड़ा सा। गलत निकल जाए इस वजह से थोड़ा नहीं, वो सब उसमें आपको कोई भी लाइन ले लीजिए, आप उस पर आगे बढ़िए, वो तो डिस्कशन की तरह है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अपना एनर्जी लेवल को बढ़ाइए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अरे अभी एनर्जेटिक सर आप नहीं दिखते आप अभी। हाँ, अभी आप प्रॉब्लम है तो जितना ठीक है, शानदार जवाब दे रहे हैं उतना बहुत शानदार अच्छा एनर्जी आपका लेवल आंसर है, नहीं है आपका। हाँ, ठीक है ना। ठीक है एनर्जी हाई रखिएगा और कुछ नहीं, और थोड़ा सा ना आपका जो ये फंबलिंग इशू हो रहा है, फंबल इसको नहीं बोलेंगे, आप थोड़ा अटक रहे हैं, आ बहुत जा रहा है, तो वो कान को सुनने में प्लेजेंट नहीं लगता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा शीशा में जो है ना वो प्रैक्टिस कीजिए, सामने देख करके उसको बोलिए किसी टॉपिक पे, तो उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप फिर मतलब क्या फ्लुएंटली बोल पाइएगा, ठीक है।